عزیز آباد محمدی کالونی بلاک 8 میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات۔ موٹو پتلو گینگ نے شہری کی اسلحہ کے زور پر واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہوگی اور دوران واردات گلی سے شہری نے بھی موبائل فوٹیج بنائی ہے۔ اسی پر اپڈیٹس لیں گے، جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید بتائے گا، فوٹیج سامنے آ چکی ہے اور شہری نے بھی موبائل میں فوٹیج بنائی ہے، پولیس اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے؟ کب تک گرفتاری عمل میں لائی جائے گی؟ بالکل جی، آج ایک ڈبل قسم کی پریس کانفرنس کی گئی ہے ایس ایس پی سینٹرل کی جانب سے، اور یہ سینٹرل کا ہی واقعہ ہے جس میں ایک اور واردات ایسی دکھائی دی گئی ہے جس کے اندر ملزمان جو ہے بآسانی شہری کو لوٹتے ہیں، موٹو پتلو گینگ، اور ایک موٹو گینگ جو ہے اسے پکڑنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے سینٹرل پولیس کی آج کی پریس کانفرنس میں ذیشان شفیق کی جانب سے، لیکن وارداتیں جو تمنے کا نام نہیں لیتی۔ شہری کی جانب سے فوٹیج بنائی گئی جس میں واضح طور پر موٹر سائیکل بھی دکھائی دے رہی ہے اور اس میں شناخت بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر بھی جو ہے ملزمان کے حرکات و سکنات جو ہے واضح طور پر دکھائی دے رہی ہیں۔ پولیس کو درخواست بھی دی گئی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دی گئی ہے، پولیس کی جانب سے وہی روایتی بیان کے جلد ملزمان کو جو ہے وہ شناخت کر کے گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن دوسری جانب شہری جو ہے خوف کے اندر مبتلا ہے۔ دن ہو یا رات ہو، کوئی چورایا ہو، کوئی سگنل ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو ہاٹ اسپاٹ نہ ہو، بآسانی ملزمان آتے ہیں، اپنی واردات کا نشانہ بناتے ہیں، نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان سے انہیں محروم کرتے ہیں، بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔ جی، شہری جو ہیں کافی زیادہ خوف میں مبتلا ہیں اور کوئی بھی ایسی جگہ شہر قائد میں نہیں ہے جہاں پر شہری خود کو محفوظ سمجھتے ہوں۔ جاوید، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لانٹھی میں غیر ملکیوں پر حملے کی کوشش ناکام، 2 دہشت گرد مارے گئے، ایک سیکیورٹی گارڈ اسپتال میں دم توڑ گیا جبکہ ایک گارڈ سمیت 2 افراد بھی زخمی ہوئے۔ 3 دہشت گردوں نے مانسہرہ کالونی میں غیر ملکیوں کی وین کو نشانہ بنایا۔ وین میں سوار 5 غیر ملکی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جا رہے تھے۔ سیکیورٹی گارڈز اور پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا، دوسرے نے خود کو دھماکے سے اڑایا، تیسرا فرار ہو گیا۔ جائے وقوع سے کلاشنکوف اور 10 بم سے بھرا بیگ بھی برآمد کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے خودکش دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر داخلہ سندھ نے پولیس ٹیم کے لیے نقد انعام اور تعریفی اسناد کا بھی اعلان کیا۔ کراچی میں ایک بار پھر دہشت گردی کی تازہ لہر، لانڈی مانسیرا کالونی میں دہشت گردوں کا غیر ملکیوں پر حملہ ناکام، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک۔ موٹر سائیکل پر سوار حملہ والوں نے گاڑی کو اس وقت روکنے کی کوشش کی جب وہ لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جا رہی تھی، تاہم گاڑی میں موجود سیکیورٹی گارڈ نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی۔ خودکش دھماکے سے متاثر ہونے والی گاڑی میں سوار سیکیورٹی گارڈ کی سٹی 21 سے خصوصی گفتگو، بتایا کہ کلفٹن سے 2 گاڑیوں میں 5 غیر ملکی کو لے کر لانڈی ایکسپورٹ زون جا رہے تھے کہ خودکش حملہ ہو گیا۔ میں نے گاڑی کے اندر سے فائرنگ کی، تاہم پولیس نے موقع پر پہنچ کر ایک دہشت گرد کو مار گرایا۔ جیسے ہی ہم یہاں پہنچے، بریکٹ میں اچانک خودکشی دھماکہ حملہ ہوا، ہماری گاڑی تو پھر رک گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد افراد 2 تھے، پتہ نہیں 3 تھے، تو دھماکے کے بعد پھر انہوں نے سامنے بیٹھ کے فائرنگ کی، اسی لیے ہمارے اوپر بھی۔ تو میرے پاس 2 گاڑیاں جاپانیز کی تھی، ایک ہائی ایکس تھی، دوسری فارچونر تھی۔ ہم نے اس کو سیو کیا، واپسی بیک کیا، اس کو واپسی بھیج دیا۔ اس میں ایک ہمارا باڈی گارڈ تھا، وہ واپسی چلے گئے۔ جیسے یہ دھماکہ انہوں نے فائرنگ کی تو میں نے بھی جواب دیا، گاڑی میں بیٹھا ہوا، گاڑی میں بیٹھ کے میں نے اس کو جواب دیا، فائرنگ کیے تو موقع پر پولیس پہنچ گئی، وہ دہشت کا دوسرا ہی مارا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آئی جی سندھ سے خودکش دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بتائیں کہ لانڈھی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش دھماکہ ہوا، بروقت کارروائی سے امن و امان سبوتاژ کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ بلاول بھٹو کی واقعے کی شدید مذمت۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزیر داخلہ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لانڈھی میں غیر ملکیوں پر حملے کی کوشش ناکام، 2 دہشت گرد مارے گئے، جائے وقوع سے کلاشنکوف اور 10 بم سے بھرا بیگ برآمد کر لیا گیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور بلاول بھٹو کی خودکش دھماکے کی پرزور مذمت۔ آصف علی زرداری نے پولیس کی دہشت گردوں کے خلاف بروقت کارروائی کو سراہا، بولے تمام قوم مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرے گی۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت، بولے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا غیر ملکیوں کی حفاظت پر مامور اہلکاروں کو زبردست خراج تحسین، بولے ملک کے امن اور ساکھ کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ کی زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا۔ بلاول بھٹو بولے امید کرتے ہیں گھناؤنے جرم میں ملوث درندے جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دہشت گرد واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ دہشت گرد کون تھے، کہاں سے آئے تھے، سہولت کاروں سمیت تمام معلومات حاصل کی جائے۔ آئی جی سندھ کو ہدایت۔ مراد علی شاہ بولے ملک دشمن عناصر امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں،
जिसकी कतन इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और सीनियर वजीर शर्जील मेमन मेयर कराची मुर्तजा वहाब की भी मजम्मत। ज़ियाउल हसन लंजार को पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी असनाद का ऐलान। शर्जील मेमन बोले, दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आईजी सिंध ने स्पेशल ब्रांच में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए नया शोबा कायम करने की हिदायत कर दी। गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के अहकामात जारी कर दिए। आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदारत गैर मुल्की बाशिंदों के हिफाजती इंतज़ामात से मुतालिक आला सतही का इजलास हुआ। एडिशनल आईजीज, डीआईजीज, एसपी फॉरनर सिक्योरिटी सेल और दीगर शरीक हुए। आईजी सिंह ने कहा कि महकमे स्पेशल ब्रांच में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के हवाले से अलहदा शोबा कायम किया जाए और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी से मुतालिक शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जाए। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि सिंध हुकूमत की गैर मुल्कियों से मुतालिक जारी करदा SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा है कि शहर में बढ़ते तजावुज़ात को रोकने के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर्स, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, लैंड ऑनिंग एजेंसी और पुलिस को मरबूत कोशिशें करनी चाहिए। कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत तजावुज़ात के खिलाफ जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के डायरेक्टर राजा तारिक ने इजलास को सरकारी अराजी पर तजावुज़ात के खात्मे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के बारे में भी आगाह किया। इजलास में फैसला किया गया कि डिप्टी कमिश्नर्स मुतल्लिका इदारों के ताउन और मदद से नई तजावुज़ात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करेंगे। कमिश्नर ने यह भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने इलाके में तजावुज़ात की फहरिस्त तैयार कर लें। पुलिस मुतल्लिका शहरी इदारों और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की मदद और ताउन से इक़दाम करें। बल्दिया उज़्मा कराची में काम चोर अफसरान की शामत आ गई। वक्त पर ना आने वाले और ड्यूटी से गैर हाजिर 16 सीनियर डायरेक्टर से वजाहत तलब कर ली गई। तमाम डायरेक्टर्स को म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से शौकस नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में आज मुलाजमत से गैर हाजिर रहने वालों से वजाहत तलब की गई। तमाम डायरेक्टर्स को वजाहत देने के लिए 17 घंटों का वक्त दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि मुलाजमत पर ताख़ीर से आने से महकमे की साख को नुकसान पहुंच रहा है। मुस्तकबिल में इस तरह की कोताही सामने आए तो मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा। गैस मसाइल शहरियों के मुआशी मसाइल में इजाफे का सबब बन गए। शहरियों का शिकवा है कि रात के अलावा दिन में भी गैस बंदिश और प्रेशर में कमी वाक़ई हो जाती है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गैस की आंख मचोली और होशरुबा गैस के बिलों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है कि गैस के बिलों में गैस लीकेज और गैस चोरी के चार्जेस लगाकर भेजे जाते हैं, जिनकी बाकायदगी से अदायगी की जाती है। इसके बावजूद गैस की लोड शेडिंग की अजियत झेलनी पड़ती है। LPG सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाने से आजिज आ चुके हैं। मैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ, उधर गैस नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को, सिलेंडर भरना पड़ता है और बहुत मुश्किल, मतलब कि गैस आती ही नहीं है। अक्सर जो है ना बस खाने का मुश्किल भी होता है, मतलब गैस नहीं आती है और सिलेंडर से गुजारा चलाते हैं। 33 का इलाका है, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी गैस नहीं आता, ठीक है। वहाँ पे लोड शेडिंग हमारे यहाँ सिलेंडर वगैरह भराने पड़ते हैं, लकड़ियों पे गुजारा हो रहा है, इस तरीके से हमारा वहाँ पे गुजारा हो रहा है। कराची में सोल्जर बाजार, औरंगी टाउन, कोरंगी, मलीर, मेमनगोट, लाइन्स एरिया, कैदाबाद, शाह लतीफ टाउन, गडाब टाउन समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर है। सुई सदन का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ गैस फील्ड से सुई सदन के सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना होता है। सार्फिन की सहूलत के लिए टाइन पैक को बेहतर बनाने समेत दीगर इक़दाम किए जाते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जबकि दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए दर्द सर बन गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया ज़रूरिया में से 14 पर सब्सिडी ख़त्म कर दी गई। सिर्फ 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी को बरकरार रखा गया है, जबकि चीनी, आटा और घी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। हुकूमत की जानिब से 19 अशिया जरूरिया में से 14 पर सब्सिडी खत्म
और 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी बरकरार रखी गई है, जिसमें चीनी, आटा, घी, चावल और दालें शामिल हैं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर से चीनी, आटा, घी की किल्लत देखने में आई है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, घी मौजूद न होने से मुश्किलात बढ़ जाती हैं, जबकि आम बाजारों में महंगाई की वजह से ये अशिया कुव्वत खरीद से बाहर हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ना घी है, ना चीनी है, ना तेल, चावल, कुछ भी नहीं है। जो घी हम लोग 335 रुपए लेते थे, आज वो 393 रुपए। ज़राए के मुताबिक ईद के बाद से चीनी, आटा, घी फराम नहीं किया गया है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर गुर्बत इंडेक्स स्कोर PMT 60 से कम करके PMT 40 कर दिया गया है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने पीर से इवनिंग क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। सदर अंजुमन के मुताबिक असातिज़ा के वाजिबात की अदम अदायगी पर बाइकआउट की कॉल दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुबैर राशिद। जामिया कराची में तदरीसी अमल मुअत्तल होने का खदशा, अंजुमन असातिज़ा ने बाइकआउट की तैयारी कर ली। सदर अंजुमन असातिज़ा डॉक्टर शाह अली कादिर ने बताया कि इवनिंग के असातिज़ा को तनख्वाह, लेवी, इनकैशमेंट और मेडिकल बिल्स की अदम अदायगी से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध गवर्नमेंट ने अगस्त में हमारे साथ एक मुआहिदा किया था और वो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन में हुआ था मुआहिदा, और उसमें उन्होंने ये कहा था हम आपको एडिशनल फंड देंगे। अब एडिशनल फंड के लिए मैं खुद इसको परस्यू करता रहा, मगर ये पता चला कि जो समरी जो है, जब बाखर साहब वो आपके चीफ मिनिस्टर थे, उस वक़्त ये समरी जी है वहाँ पहुँच गई है। अब अभी पता चला है कि वो समरी हमारी कोई भी नहीं थी। अब इसके नतीजे में ये हुआ कि हमारे जो एरियर थे, जो कि हमें मिलने चाहिए सैलरी से, गवर्नमेंट ने जो बढ़ाए थे, वो 4 महीने के अब तक जो है नहीं मिले। डॉक्टर शाह अली कादिर ने बताया कि वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी फिलफौर असातिज़ा के वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाए कि हमारे पास जो असातिज़ा शाम में पढ़ाते हैं, उसमें से जो है तकरीबन जो है 60% जो है वो बेचारे सिर्फ शाम में ही पढ़ाते हैं, मॉर्निंग में नहीं पढ़ाते। वो मतलब परमानेंट फैकल्टी नहीं है। कई 1.5 साल से वो बेचारे आते हैं, पढ़ाते हैं। अब वो कई उन्होंने इनकार कर दिया। हम ये समझते हैं कि इसमें शेखुल जामिया अपना रोल प्ले करेंगे, और वो यकीनी तौर पे जो है इसके अंदर जो है, हम तो अभी एक मरहले पे जा रहे हैं कि जून 2023 तक की ही दे दीजिए, दिसंबर 23 की भी नहीं मांग रहे। हम पता है यूनिवर्सिटी की माली हालात भी अच्छे नहीं है, यकीनी तौर पर शेखुल जामिया इस पर अपना रोल प्ले करेंगे। जामिया कराची में अंजुमन असातिज़ा की जानिब से पीर से शाम की क्लास का बाइकआउट किया जाएगा। मुतालबात की अदम मंजूरी की सूरत में मई के आगाज में इजलास मुनक्किद करके आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अनासिन गवर्नर हाउस में IT क्लासेस तकमील की जानिब गामजन 1 साला मेटावर्स, वेब 3 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स का पहला मरहला मुकम्मल होने को तैयार है। हाथ से माजूर तालिब इल्म भी IT की दुनिया में कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। तालीम के हुसूल के लिए माजूरी भी रुकावट नहीं बन सकी। इल्म की तलाश में एक हाथ से माजूर तालिब इल्म भी गामजन। डॉलरों में कमाने के लिए तुलबा की पहली मंजिल उबूर होने के करीब। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा IT क्लासेस में 1 साला मेटावर्स, वेब 3 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स का पहला मरहला तकमील के आखिर मराहिल में है। तालिब इल्मों ने इत्मीनान का इजहार किया और गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। वो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नर साहब का कि इन्होंने इतना अच्छा स्टेटस, इतना अच्छा आगाज़ किया इन्होंने। और इस शहर के अंदर ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो आज के नौजवानों को, बिलखुसूस हमारे शहर के अंदर इस तरह की बढ़ती सूरत के अंदर मैं बहुत खुश हूँ इस हवाले से कि माशाल्लाह बेशुमार एक्टिविटी हो रही है। ये तो सुन के बड़ी खुशी होती है IT क्लास की। हमें पता चलेगा, हम कुछ सीखेंगे, हमें जज्बा भी आएगा जो एग्ज़ाम पे हम कितने प्रिपेयर हैं आगे के लिए। ये जो कोर्सेस हैं, हमें मैंने सर्च की तब USA वगैरह में बड़े $5,000 के ये कोर्सेस हैं। जी बस दिन में जो है हम लोग जो है अपना ये पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ईयर वगैरह के जो हमारी इंटर कॉलेज की पढ़ाई है, रात में जो हम इसकी तैयारी करते हैं, इस तरह मैनेज करते हैं हम लोग, और फोकस होगा इसमें। और इंशाल्लाह ताला गवर्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव आगाज़ किया है हमारे लिए और बहुत से लोगों के लिए, और तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सरबरा IT कोर्स इंजीनियर दानियाल नागौरी के मुताबिक पहले मरहले के टेस्ट 2 हफ्ते बाद होंगे। कैमरामैन इमरान AK के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कारोबारी दुनिया से आपको खबर दें कि ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद ने ताजर दोस्त स्कीम की हिमायत कर दी। रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी का मुतालिबा कर दिया। काविश मेमन की ये रिपोर्ट।
ताजिर दोस्त स्कीम पर ताजिर बिरादरी धड़ों में तकसीम। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, ऑल कराची ताजिर अलायंस और ऑल अंजुमन ताजिर सिंध इत्तेहाद ने मुखालफत कर दी, जबकि ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने स्कीम की हिमायत कर दी। तर्जुमान इस्माइल लालपुरिया का कहना है, टैक्स नेट में सबको आना चाहिए। ताजिर दोस्त स्कीम की मुखालफत करने वाले ताजिर खुद टैक्स नहीं देते। देखिए, अमल दरामद तो होना चाहिए। दुनिया भर के तमाम हुकूमतें जो हैं वो ताजिर दोस्त स्कीमें लाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा मसला आता है कि हमसे जो फैसले लिए जाते हैं, मशवरे लिए जाते हैं, उसका फैसला पहले कर दिया जाता है, मीटिंगें बाद में होती हैं। जैसे कि अभी इसका इम्प्लीमेंट हो चुका है 1 तारीख से। अब मीटिंग जो है FBR की RTO 2 के अंदर में आज रखी गई है, क्योंकि आज हमें बुलाया गया, क्योंकि उनको वो मिला नहीं है। इससे पहले गुज़िश्ता हुकूमतों में भी इसी तरह हुआ था कि ऐलान कर दिए जाते थे और फिर उसके बाद हमें बुलाया जाता था और फिर हम उनसे अपने मशवरे देते हैं कि इस तरह करें, क्योंकि जब तक आप ताजिर एसोसिएशन को साथ लेके नहीं चलेंगे, मार्केट के अंदर में आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इस्माइल लालपुरिया बोले, रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी होनी चाहिए। देखिए, इंशाल्लाह जिस तरह पिछले भी दौरों के अंदर में डेटें बढ़ती रही हैं, डेट बढ़ जाएगी। आज हम यही मशवरा देंगे उनको कि डेट बढ़ने का, और फिर जो हमारे पास तमाम ताजिर रहनुमाओं के पास जो अपने मशवरे हैं, जो अपनी राय है, वो हम इनको देंगे कि किस तरह से जो है आप प्यार मोहब्बत से टैक्स लें। ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में उगने वाले जंगली जैतून का तेल काबिल इस्तेमाल और ग़िज़ाई एतबार से मुफीद करार दे दिया गया। जंगली जैतून के 8 करोड़ से ज़ायद दरख्त अरसे दराज से फल दे रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि इससे खूर्दनी तेल का दरामदी बिल भी कम होगा। मज़ीद जानते हैं आयमा खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले जंगली जैतून का तेल काबिल इस्तेमाल। हालिया तहकीक में तिब्बी एतबार से जंगली जैतून को बेहतरीन करार दे दिया गया। जामिया कराची के शोबा फूड एंड साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर गुफरान सईद कहते हैं, जंगली जैतून के खुश्क फलों में 15% तेल है, जो बआसानी आम मशीनों से निकाला जा रहा है। वाइल्ड ऑलिव की खास बात यह है कि ये खुश्क हालत के अंदर जो है वो निकाला जा सकता है। ये तेल हमारे पास भी खुश्क हालत के अंदर ये वाइल्ड ऑलिव आए और हमने इसका फिर ऑयल निकाला अपनी लैब के अंदर भी, और जो कमर्शियली जहाँ पे ये तेल निकल रहे होते हैं वहाँ से भी निकाला। तकरीबन कोई ये समझ लें कि 15 से 17% के दरमियान जो है वो खुश्क ऑलिव के जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर जो है वो हमें इसकी क्वांटिटी मिली 15 से 17%, और ये क्वांटिटी अच्छी खासी है। जंगली जैतून का दरख्त खूना कहलाता है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अक्सरियती इलाकों में खूना, पंजाब और कश्मीर में कहू और बलूचिस्तान में हिस कहा जाता है। जंगली जैतून की जड़ और लकड़ी मजबूत होती है, जबकि ये पाकिस्तान के माहौलियाती निज़ाम से मुकम्मल मुवाफ़क़त रखता है। पाकिस्तान में मौजूद जंगली जैतून को इस्तेमाल करके न सिर्फ दरामदी बिल कम किया जा सकता है, बल्कि सेहत से भरपूर खाने का तेल लोगों को मैसर आएगा। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। FPCCI के साबिक नायब सदर शबीर मंशा ने अहम तजवीज़ें दी। कहते हैं कि सालाना $100 अरब की दरामदात और बरामदात की तिजारत होती है। पोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर से टैक्स 100% आयद है, जिससे सालाना 280 अरब रुपए की करीब इकट्ठा होता है। ये रकम कराची की बेहतरी के लिए लगाई जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की अहम तजवीज़। FPCCI साबिक नायब सदर शबीर मंशा ने कहा कि पाकिस्तान सालाना $100 अरब की मालियत की दरामदात और बरामदात की तिजारत होती है। पोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स की मद में मुल्क भर के ताजिरों से 1.25% टैक्स वसूल किया जाता है। कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स की मद में सालाना 280 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं। तजवीज़ दी कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत से मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स कराची की बेहतरी के लिए लगाए। 280 अरब रुपए सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर की में पूरा पाकिस्तान तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कौम को देता है और इस वक्त यहाँ पे जमा होता है। तो हमारी इसमें यही तजवीज़ है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ये सब लोग मिल के यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि यूज़ होता है आप कंट्री के लिए पूरे पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश और दूसरी चीज़ों की तरसील के लिए, तो उसको अगर उसमें इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। साबिक नायब सदर FPCCI ने कहा कि वफाकी वजीर बहरी उमूर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने की
तजवीज़ दी है। इस चीज़ को उन्होंने बहुत पॉजिटिव लिया है और वो ये कह रहे हैं कि जी कि सिंध हुकूमत के साथ मिलके और मकामी कराची की हुकूमत के साथ मिलके हम इसको ज़रूर आगे लेके चलेंगे। तो हम इसी की उम्मीद करते हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि 280 अरब एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और अगर सालाना 280 अरब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट पे लिया जाए जिसका टैक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। शबीर मंशा ने कहा कि कराची में 7 इंडस्ट्रियल जोन हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से सनतों समेत मुल्क की मईशत को भी फायदा होगा। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि 120 से ज़ायद ममालिक में फ़न का जौहर दिखाने वाले फ्रेंच गिटारिस्ट की शानदार परफॉर्मेंस। फ्रेंच कल्चरल सेंटर में मगरबी अंदाज की मौसीकी की सुरीली शाम मुनक्किद की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। मगरबी अंदाज की मशहूर कुन मौसीकी, दिल को छू लेने वाली धुनें, फ्रांस के मकबूल मौसीकार घराने में पैदा होने वाले मारूफ गिटारिस्ट थेबालिट कॉवन के एजाज में मौसीकी से दिलचस्पी रखने वालों के लिए फ्रेंच कल्चरल अलायंस फ्रांसिस में मौसीकी की हसीन शाम का इनेकाद किया गया। थेबालिट ने गिटार पर अपनी उंगलियों का जादू जगाकर ऐसी धुनें बजाएं कि हाजरीन महसूस होते रहे। Music holds people together, brings people together. बहुत ही इट्स पार्ट ऑफ योर कल्चर। पाकिस्तान में, हर दुनिया में इट्स पार्ट ऑफ योर कल्चर। एंड वो इतना अच्छा फ्यूज़ किया राग और मंगोलियन म्यूज़िक, इस्तांबुल का म्यूज़िक और अर्जेंटीना का म्यूज़िक, बहुत ही खूबसूरत शाम थी। एंड जैसे आपने कहा, ऐसी इवनिंग्स होते नहीं हैं। और ये जो अगर आप सर्च करें, ये जो परफॉर्मर थे गिटारिस्ट, ही इज़ वर्ल्ड फेमस, सो वी आर वेरी लकी टू हैव हिम एंड ही डिड अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। एंड आई होप कि और ऐसी शामें हों और हम लोग इंजॉय कर सकें। फ्रेंच गिटारिस्ट का कहना था कि पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा, यहाँ मौसीकी को समझते और पसंद करते हैं। पाकिस्तानी म्यूजिक मेरे दिल के करीब है। It was a great pleasure for me. It's my first day in Pakistan, my first concert. I'm here for 1 week. I will play also in Lahore and in Islamabad. And I'm very, very happy to be here and to play in such a beautiful place with a beautiful audience and to share my music here in this country, which is a new friend country for me. I just would like to say that I'm very happy to be here in Pakistan. I just arrived 2 days. The few I have seen, I have enjoyed it very much. The concert tonight was very special to me, and I'm sure I will remember forever this week here in Pakistan. तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जर्नल समेत म्यूजिक लवर्स ने शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया। कैमरामैन काशिफ अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी कराची में आलमी कॉन्फ्रेंस के मेहमानों को खुश आमदीद। रंगारंग तकरीब, क्लासिकल मौसीकी का भी तड़का। वेलकम इवनिंग के उन्वान से तकरीब में असातिज़ा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमें रिपोर्ट कर रही है सैयद ज़ुबैर राशिद। ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 का आगाज। वेलकम इवनिंग की तकरीब ज़ेबिस्ट मीडिया स्टूडियो में मुनक्किद हुई। मुनक्किदा तकरीब में क्लासिकल मौसीकी के सुर बिखरते नजर आए। तकरीब के मुंतजिम हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर सारा वली काजी ने बताया कि तकरीब में कल्चर और फोल्क म्यूजिक को मुतारिफ कराया है। आज की जो हमने इवनिंग रखी है, ये है वेलकम इवनिंग के नाम से, जिसमें हमने कल्चर एंड फोक म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि हमने जो इंटरनेशनल हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, बीइंग द एकेडमिक इंडस्ट्री, हम लोग जो है सस्टेनेबिलिटी पे ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो सस्टेनेबिलिटी पे लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुश्तबा ने बताया कि तकरीब का इनेकाद सिंध की सकाफत को फरोग देना है। म्यूज़िकल इवनिंग अरेंज की है और इसमें हमने जो इसको जो हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके प्रायर हमने इसको अरेंज किया है और इसमें हमने जो है इनवाइट किया हुआ है इंटरनेशनल हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनको इनवाइट किया हुआ है और हमारे अपने फैकल्टी के मेंबर्स हैं और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं उनको इनवाइट किया हुआ है। और ये इवेंट जो है स्पेशली हमारे जो सिंध का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको प्रोमोट करने के लिए इसको हमने अरेंज किया है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 19 और 20 अप्रैल को मुनक्किद होगी। कैमरामैन जहांजेब के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। रिपोर्ट आपने जानी और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लेता है।